Good morning students. Welcome back to the online sessions of Science Class 10. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So I just requested to you, don't go outside your homes. Also avoid to go into the crowded places and always be wear a mask. Always be take sanitizers with you and wash your hand at a specific time of interval up to 20 seconds. Stay home and stay safe. Students, today we're discussing about the new lessons of your NCERT syllabus, chapter number 4, carbon and its compound. Okay, so basically when we start this chapter, I'll give some of the introductions about the carbonic substances. So before we discussing what are the proportions of the carbon which is present into the earth crust or maybe the atmosphere. So all the living structures which all are based on the carbon. Most of all the living structures are mostly dependent on based onto the carbons. The amount of carbon which is present into the earth crust and the atmosphere is quite less. Crust and in the atmosphere is quite less comparison to the other gases. The amount of carbon which is available into the earth crust is almost 0.02%. 0.02% are there. And like in the form of minerals, carbonates, hydrocarbonates, coal, petroleum, these are the forms of carbon which is available into the earth crust as a form of 0.02%. And the amount of carbon which is available into the atmosphere is approximate 0.03%, which is generally form into the monoxide and dioxide form into the atmosphere. So mostly list of things which we are consumed since morning to the bed, different type of substances that should be used like toothbrush, toothpaste, buckets, as well as water, soap, detergent. These are the substances mostly which we have to be used in our daily formations. So see here, things made of metals, things made of glass and clay, which are the other substances. Like if we consider that from you wake up in the morning and go into the night into the bed, you are using the different type of substances like things which made by the metals like cooking utensils are there, bucket is there, things made of the glass and clay like cup is there, glasses are there, other substances like toothbrush, toothpaste, water, soap, detergent, milk, medicines, newspapers, books, etc. These are the substances which we have to be commonly used in our day-to-day life. So if we see that mostly in this chapter we'll be discussing about the mainly onto the carbonic substances, which are the properties of carbon, how they make to another form of carbon, how they make the bond between another, which are the reactions are there, esterification process are there, saponification process are there. These are the topics which we have to discussing. So these are the chapters which is very much important for the 10th standard as well as into the next year your 11th 12th classes. These are the chapters which are very much important. So today now we're discussing about the first topic like bonding of the carbon. Bonding of the carbon, mostly if we discussing that each and every elemental substances which have a specific properties through their atomic number. So while we discussing in your previous class, each and every element have a center of portions that is called at form of nucleus. Each and every atom have a nucleus, and nucleus generally contain the positive substances like protons is there and neutron is there. Neutron is a chargeless substances which is also available into the at the center of the atoms in a form of nucleus. While the electrons which are generally rotated into the outer orbits having a different orbits, first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit, it's like a 4 orbit are there. Also there is a 4 different orbits having a cell like K, L, M, and these are the cells. The first orbit that generally contain the 2 electrons, second orbit generally contain the 8 electrons, third orbit generally contains 18 electrons, then 32. So these are the generally configurations of electron which is available into their orbits. So according to the how many number of electrons that is available into the outer orbit of the atoms, that generally possesses its properties. So atomic number and atomic masses have a different scenarios. Atomic number means what? How many number of proton and electron available into the atoms, that generally define the atomic number. But atomic mass is the different, having the masses of neutron is there, proton is there, electron is there. According to mass will be different. So number of electron which is available into their outer orbit, according to that it is generally converted into the metallic substances
non-metallic substances or semi-metal. Like if the outer orbit having a 1, 2, 3 electron, it always be tendency to lose the electrons having a positive charge of ion, that always be metals. Like having a outer orbit 5, 6, 7 electrons, it always be tendency to accept the electrons having the negative charge of the elements of ions is always be non-metallic substances. The substance which have never be take a participate in loss or gain the electrons, which is generally called as the semi-metals, and the outer orbit completed the elements which is called as a noble gas configuration, like helium, argon, neon, these are them. So generally the elements which generally forms a molecules or compound by sharing the electrons or by loss or accept the electrons, these are the general configurations of the molecules. So when the ions always be having positive and negative charge. If element like sodium have a atomic number 11, just 281, first orbit 2 electrons, second orbit 8 electron, and third orbit 1 electron. It having a tendency to lose the electrons. So if 1 electron will be lost by the sodium, it gains the charges of Na+. So it is called sodium ion. Similarly like chlorine having a atomic number is 17, so first orbit having a 2 electrons, second orbit having a 8 electrons, while third orbit having a 7 electrons. So while 7 electrons having their in outer orbit, it have tendency to accept the 1 electron. So while it accept the 1 electron, it will be Cl minus ion. So 288 configuration, while Na plus 28. So while the configuration of this type of positive and negative ion informs a molecular compound, it is generally having a property of ionic compound. That is generally called as ionic compound. So we will be discussing first of all ionic compound. If the two different charges of ion, opposite charges of ion, one is called positive charge, one is called negative charge. तो अगर positive और negative charge ion if consider and create a molecules or compound to each other, it always be form ionic compound. Like, so first we discussing which are the properties of ionic compound. Now ionic compound generally they have usually a very high melting point as well as the boiling point. Very high melting point and boiling point. Usually we seen that ionic compound are very strongly substances because the positive ions are joined together. So it means they have high melting point and boiling point. They also possesses the strong force of attraction between the opposite charge of ions. इनके बीच में एक strong attraction force होता है जो opposite charge of ions इसको gain करते हैं. Also they conduct the electricity into the aqueous solution into the molten state. वो इलेक्ट्रिसिटी को एक्वायर करते हैं. दे जनरली एक्वायर द इलेक्ट्रिसिटी हैविंग इनटू द मोल्टन स्टेट. मोस्टली क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्शियल चार्ज पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी को इजीली गेन करते हैं. दे आर जनरली हैविंग यूजुअल इन अ सॉलिड फॉर्म. मोस्टली जो ये सॉल्यूशंस जो होते हैं या जो इसके जो आयोनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं वो ज़्यादातर आपके सॉलिड के फॉर्म में होते हैं और दे आर मोस्टली सॉल्युबल इनटू द वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल होते हैं. तो ये उसकी आपके प्रॉपर्टीज होती है आयोनिक कंपाउंड की. लेकिन अगर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवलेंट बॉन्ड जनरली फॉर्म्ड होता है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर हो, जैसे कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर करे, नाइट्रोजन के बीच में शेयर करे, तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके जब एलिमेंट या मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनता है तो वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स. नहीं वो तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ना ही वो रिसीव कर रहा है, बट वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है. तो जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो सब्सटेंसेस जब वो क्रिएट होता है तो वो क्रिएट करता है आपका कोवलेंट कंपाउंड. तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कोवलेंट कंपाउंड की? तो ये जनरली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है काफ़ी लो है. ये इसके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ये नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के. मोस्टली ये सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं. दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इनटू द वाटर, लेकिन ये सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं उसके अंदर ये सॉल्युबल होते हैं. अभी यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कुछ सब्सटेंसेस के आपको यहाँ पे दिए हैं कि इफ यू सी दैट कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे जो सब्सटेंसेस के लाइक यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो एसिटिक एसिड का जो फॉर्मेशन दिया है CH3COOH का जो फॉर्मेशन है कि एसिटिक एसिड CH3COOH, लाइक यू सीन दैट कि ये जो एसिटिक एसिड जो दिया है CH3COOH का फॉर्मेशन, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको देखेंगे तो 290 दिया है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इसका 391 के आसपास दिया हुआ है.
उसी तरह क्लोरोफॉर्म देखिए CaCl3 उसका मेल्टिंग पॉइंट 209 है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट आप 334 के आसपास देख सकते हैं। इथेनॉल में भी सेम वही प्रोसेस है, इथेनॉल के अंदर भी मेल्टिंग पॉइंट 156 का, बॉइलिंग पॉइंट 351 का है। तो ईच एंड एवरी सब्सटेंसेस जो कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि एक ऐसा सिनेरियो हम समझते हैं कि जहाँ पे कार्बन का जो टेट्रावैलेंसी कॉन्सेप्ट जो आता है, कार्बन का जो टेट्रावैलेंसी मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब अगर हम देखें तो कार्बन के अंदर जो उसका जो एटॉमिक फॉर्मेशन जो बनता है कार्बन के हिसाब से अगर हम देखें तो कार्बन के अंदर उसका एटॉमिक नंबर है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6 है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके अंदर 2 सेल बनेंगे, एक पहला सेल बनेगा जिसको K सेल कहते हैं, दूसरा सेल बनेगा उसको L सेल कहते हैं। तो ऑर्बिट के हिसाब से अगर कार्बन के अंदर 6 है तो पहला जो K सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो L सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर पाए जाएंगे। तो अगर आप देखिए कि कार्बन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर है तो जो हर एक एलिमेंट का जो रिएक्टिविटी होता है, जो ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में भी मैंने आपको समझाया था कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटालिक सीरीज क्या होता है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का रिएक्टिविटी डिपेंड करता है उसकी टेंडेंसीज पे जो अटेन करता है कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। इट हैज टू बी कंसिडर अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन, वो उसकी जनरली एक टेंडेंसी होती है। सो एलिमेंट अगर आयोनिक कंपाउंड को वो अचीव करते हैं बाय शेयरिंग द लॉस द इलेक्ट्रॉन और रिसीव द इलेक्ट्रॉन, आयोनिक कंपाउंड, अगर एलिमेंट्स जो हैं वो आयोनिक कंपाउंड को अचीव करते हैं बाय आइदर द रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन्स और लॉस द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट सेल, बट कार्बन इज दैट काइंड ऑफ एलिमेंट, द कार्बन एटम नीड्स 4 इलेक्ट्रॉन्स और मे इट हैव टू बी लॉस द 4 इलेक्ट्रॉन्स, तब वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करेगा। जो ऑक्टेट का जो रूल्स होता है वो कंप्लीट ऑक्टेट के लिए या तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पड़ेंगे या तो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि कार्बन का एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है या रिसीव कर रहा है, ऐसे सर्कमस्टांसिस में क्या सिनेरियो हो सकता है। तो अगर कार्बन का जो एटम है, इफ इट गुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स इट शुड बी C4 माइनस, क्योंकि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा तो क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। माइनस यानी नेगेटिव चार्ज, C4 माइनस एनियन, नेगेटिव को एनियन कहते हैं, पॉजिटिव को कैशन कहते हैं। बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद द 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया कि कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 6 प्रोटॉन्स होंगे, तभी एटॉमिक नंबर डिफाइंड होता है। लेकिन अगर कार्बन का एटम 4 इलेक्ट्रॉन को अगर रिसीव करता है तो 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। तो उसके लिए न्यूक्लियस को उस चीज को होल्ड करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो दैट इज फॉर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब मान लीजिए वो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है, 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा C4 प्लस एनियन जिसको आप कहेंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो बट इट वुड बी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द 4 इलेक्ट्रॉन्स बिहाइंड द कार्बन विद द 6 प्रोटॉन्स, क्योंकि 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस भी करता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वो भी आपके लिए अनस्टेबल हो जाएगा। सो ये जो कार्बन का ये जो शॉर्ट है कि इन शॉर्ट की कार्बन का एटम कैन नॉट बी कंबाइंड बाय फॉर्मिंग अ इलेक्ट्रोकोवलेंट ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो कार्बन का एटम कभी भी आयोनिक बॉन्ड को फॉर्म नहीं करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ना तो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके। सो हेंस तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ना रिसीव करके, तो बचा क्या चांसेस, वो शेयर कर सकता है। सो हेंस कार्बन is generally by sharing its valency of electrons with other atoms of carbon or with the other elements to form a molecule। तो कार्बन क्या करेगा, दूसरे कार्बन के एटम के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ मॉलिक्यूल जब फॉर्म करेगा तो मॉलिक्यूल कब फॉर्म्ड होगा, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना ही कि लॉस और रिसीव करके। सो बॉन्ड दैट इज जनरली फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू देयर आउटर मोस्ट सेल, जिसको वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं,
of two atoms is called covalent bond. तो कोई भी दो एटम के बीच में इस तरह का इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने की वजह से जो फॉर्म्स बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को आप शेयर करते हैं, शेयर इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं आप, तो आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो दोनों एटम्स का, बोथ द एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, दोनों नोबल गैस कन्फिग्रेशन कंसीडर करते हैं बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। अभी यहाँ पे आप देखिए ये जो फिगर दिया है वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल के बारे में दिया है, दैट इज शुड बी अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट दिया है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए अभी एक चीज हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का अगर आप एटॉमिक नंबर आप डिस्कशन करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो उसके अंदर जो के शेल होगा, पहला शेल क्या होता है, के शेल है। के शेल के अंदर वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, हैविंग अ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का जो के शेल है वहां पे अगर आप के शेल के बारे में अगर आप डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे जो के शेल मैंने आपको दिखाया है उस के शेल के अंदर तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स बनता है, तो हाइड्रोजन या तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है फिगर के अंदर जैसे आपको मैंने दिखाया है। सो दोनों हाइड्रोजन के पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, लाइक दिस। ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। तो हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल, के शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, लॉस करेगा, दो में से एक चांसेस है। तो अगर ए वाला हाइड्रोजन जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो इसके पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ए वाला जो हाइड्रोजन अगर वो एक्सेप्ट करेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 and 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे इसके पास, तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो है वो आपका बैलेंस नहीं होगा। तो ऐसे में क्या करेगा, जो हाइड्रोजन का जो एटम्स होगा वो हाइड्रोजन का एटम्स एक एक हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो दोनों करेंगे वो हाइड्रोजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। दोनों क्या करेंगे, H2 का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म करेंगे, और H2 का मॉलिक्यूल्स फॉर्म करने की वजह से दोनों एक एक हाइड्रोजन को यहाँ पे शेयर करेंगे, यानी दोनों का जो कन्फिग्रेशन होगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो होगा वो सिंगल बॉन्ड H' के साथ वो जुड़ेगा। तो जनरली इट शुड बी ज्वाइन विद द H' इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाया है। तो ये जो एज अ रिजल्ट कि हर एक हाइड्रोजन के एटम्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसको नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन अगर कंप्लीटेड करनी है तो उसका के शेल जो होगा वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ उस मॉलिक्यूल को शेयर करके वो H2 का मॉलिक्यूल बनाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है इसीलिए वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, हैविंग अ सिंगल बॉन्ड। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे क्लोरीन के बारे में आपको दिया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको टॉपिक दिया है वो क्लोरीन के बारे में दिया है, सी ईयर ये आपको दिया है द नंबर ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के बारे में आपको दिया है। तो क्लोरीन के बारे में पता है कि क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास, 17 है। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो उसका जो पहला के शेल होगा, एल शेल होगा, एम होगा और एन होगा, 4 शेल होंगे। तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उसी तरह एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हैविंग अ 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो उसको वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए अगर क्लोरीन को वैलेंसी कंप्लीट करना है तो उसका जो आउटर ऑर्बिट है जिसमें 7 जो एम शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इट रिक्वायर्स 1 more इलेक्ट्रॉन टू फिल अ एम शेल। ओके, सो 2 क्लोरीन एटम्स विल शेयर देयर 1 इलेक्ट्रॉन to M cell to other form a molecule of chlorine Cl2 molecule। तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, दोनों Cl और Cl एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, तो Cl' से वो क्लोरीन का जो एटम्स है वो जुड़ता है, दैट हैविंग अ बॉन्ड ऑफ Cl जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल को फॉर्म करेगा। वैसे ही यहाँ पे एक और फिगर आपको दिया है, वो दिया है यहाँ पे फॉर्मेशन जो है वो ऑक्सीजन के बारे में दिया है, ऑक्सीजन के बारे में। चलिए ऑक्सीजन के पहले एक और समझ लेते हैं वाटर के बारे में। अगर यहाँ पे फॉर्मेशन दिया है ऑक्सीजन और वाटर का फॉर्मेशन है, पढ़ लेते हैं। तो अगर हमें वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है, यहाँ पे मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। वाटर का मॉलिक्यूल अगर मुझे बनाना है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है आपके पास H2O। वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या बनेगा आपका H2O, ठीक है। अब यहाँ पे H2O के अंदर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है। ओके, ऑक्सीजन is a central atom into the molecule of water,
सो इसका कन्फिग्रेशन जो ऑक्सीजन का आउटर ऑर्बिट 8 है, तो उसका जो K शेल होगा और जो L शेल होगा, तो K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इट हैविंग अ 6 इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीजन स्टेट्स 2 of its valence electrons with the K shell of a 2 hydrogen atom with the molecule and creating the H2 water। तो जो हाइड्रोजन के आप यहाँ पे दो जो एलिमेंट आप यूज करते हैं, लाइक यू आर यूजिंग H2, अभी आपने H2 यूज किया और ऑक्सीजन यूज किया, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और H2 क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को वहां से रिसीव करेगा। तो ये क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा, तो वो H2 का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो H2 का मॉलिक्यूल्स होगा OH-H। इस फॉर्म में आप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बना सकते हैं, ठीक है, बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो आउटर ऑर्बिट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स का जो फॉर्मेशन होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा इन क्रिएटिंग द H2O मॉलिक्यूल्स। उसी तरह एमोनिया है, NH3 का फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं, उसमें भी इसी तरह का नाइट्रोजन का जो आउटर ऑर्बिट है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो उसके आउटर ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल आप यूज कर लीजिए, तो NH3 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वहां से शेयर कर लेगा और NH3 का मॉलिक्यूल्स वहां पे कोवलेंट बॉन्ड से फॉर्म करेगा। ठीक है, उसी तरह CH4 है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 हाइड्रोजन का आप यूज कर लीजिए, चारों हाइड्रोजन वहां शेयर हो जाएंगे, CH4 का मॉलिक्यूल्स वहां पे बन जाएगा। तो ऐसे जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम वहां पे फॉर्म कर सकते हैं। चलिए, अभी यहाँ पे एक आपको दिया हुआ है एक फॉर्मेशंस, जो ये डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम्स, उसके बारे में हम समझते हैं कि डबल बॉन्ड ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स क्या है। तो जैसे अभी हमने समझा कि द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। सो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 6 होगा। देखिए बुक में जो है वैसे पढ़ के मैं नहीं बता रहा हूँ, बट जो मेन टॉपिक्स है मैं आपको समझा रहा हूँ, बुक आपको खुद रीड करनी होगी उसके अकॉर्डिंग टू। तो ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो हमें पता है कि जो पहला ऑर्बिट है K शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरा ऑर्बिट जो है L शेल, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो L शेल है सेकंड ऑर्बिट, उसमें उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इसका मतलब कि उसको ऑक्टेट अगर कंप्लीट करना है, इफ यू वांट टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ देयर आउटर ऑर्बिट, इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन टू फुलफिल द L शेल, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो देयरफॉर 2 atoms of oxygen states 2 electron on L cell and creating the molecule of O2। यानी ऑक्सीजन क्या करेगा? सेम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ वो ऑक्सीजन को शेयर करेगा, लाइक हैविंग अ 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहाँ पे आपको फिगर के अंदर मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, दे हैविंग द शेयर द 2-2 इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इसीलिए कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? इट हैविंग अ डबल बॉन्ड। यहाँ पे आप O डबल बॉन्ड O देख रहे हैं, इसीलिए वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सो 4 वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का वैलेंसी में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, इसीलिए वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। तो डबल बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। वैसे सिमिलरली यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के बारे में, जो N2 का मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट में उसका 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जो उसका L शेल है, L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक सी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो दोनों ये जो नाइट्रोजन के एटम्स आपको दिख रहे हैं ना, दोनों नाइट्रोजन के एटम्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 and 5। तो दोनों के पास 5-5 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन आउटर ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों नाइट्रोजन के जो एटम्स होंगे, वो दोनों नाइट्रोजन के एटम्स इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शेयर करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा ये नाइट्रोजन, 3 इलेक्ट्रॉन इसको, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो ये जो नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, ऑक्सीजन का एटम डबल बॉन्ड से जुड़ता है, नाइट्रोजन का एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम टाइप ऑफ एलिमेंट को आप शेयर करते हैं, उतने नंबर ऑफ बॉन्डिंग से वो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे के साथ वहां पे जुड़ते हैं। ठीक है, ये उस स्पेसिफिक फॉर्मेशंस वहां पे हमें समझना है। चलिए, अभी नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे दिया है वो एल्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में दिया है। सबसे पहले तो हमें समझना है कि एल्ट्रॉप्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द एल्ट्रॉप्स? एल्ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? So when an element that exists in a 2 or more forms, कोई भी एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म के अंदर अवेलेबल है,
विच हैव अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है बट हैविंग अ सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सो दिस आर द नॉन एज एल्ट्रोप्स ऑफ एलिमेंट। तो कोई भी एलिमेंट अगर एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर अवेलेबल है और जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी अगर आइडेंटिकल है, तो उस तरह के एलिमेंट्स को आप कहेंगे एल्ट्रोप्स। ठीक है, चलिए हमें जो यहाँ पे पढ़ना है वो है कार्बन के एल्ट्रोप्स के बारे में समझना है। जो हमें यहाँ पे बुक के अंदर 3 अलग अलग फॉर्मेशंस दी हैं उसके बारे में हमें समझना है। द एलिमेंट ऑफ कार्बन दैट एग्जिस्ट इन अ नेचर इन डिफरेंट फॉर्म, कार्बन के जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल हैं और सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। जैसे हम देखते हैं कि अलग कार्बन अलग अलग जगहों पे है, उसके अकॉर्डिंग मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड अर्थ के क्रस्ट में है, उसके अलावा वो किसी और भी फॉर्म में है। सो द एलिमेंट ऑफ कार्बन दैट एग्जिस्ट इन अ नेचर इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स विथ हैविंग अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी वहाँ पे अलग अलग होगी बट ऑल हैव द कॉमन आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी, सो दिस फॉर्म्स आर कॉल्ड अ एल्ट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो उसको आप कार्बन के एल्ट्रोप्स कहेंगे। कार्बन के 3 एल्ट्रोप्स जो है वो हमें पढ़ने हैं, बुक के अंदर दिए हैं। 1 इज डायमंड, 2nd इज ग्रेफाइट, 3rd इज फुल रिंग्स। दिस आर द 3 मेन एल्ट्रोप्स ऑफ द कार्बन। दिस आर द 3 एल्ट्रोप्स ऑफ कार्बन ऑफ अ प्योर कार्बन। दिस इज कंसिस्ट ऑफ अ प्योर कार्बन। ये तीनों एल्ट्रोप्स जो है प्योर कार्बन के फॉर्म है, या तो डायमंड हो, या तो ग्रेफाइट हो, या वो फुल रिंग्स हो। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुल रिंग्स व्हेन बर्न इन अ एयर, एयर के अंदर अगर आप उसको बर्न करते हैं तो दे फॉर्म्स अ कार्बन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जनरली कार्बनिक सब्सटेंसेस को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप बर्न करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जनरेट करता है। तो दिस आर द गैस विच इज द कलरलेस, odorless and generally turns a lime water milky structures. So these all three have a common chemical property. So this is why this is called as the allotropes of same. Physical property will be differ, but chemical property will be same. So these are called as allotropes. Now first we are discussing about the diamond. First structure we are discussing about the diamond. See here. So diamond, each carbon is generally consist with the 4 different carbon. डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर आप देखेंगे, सो इन डायमंड स्ट्रक्चर ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद द 4 अदर कार्बन हैविंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल टेट्रा स्ट्रक्चर. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, चलिए कैसे हो 3 बनेगा, 3 स्ट्रक्चर यहाँ से देखिए 1 2 3, ऐसे 3 आप उसके स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं. यहाँ पे भी आप निकालना चाहे तो 1 2 एंड 3, यहाँ पे भी आप निकालिए 1 2 एंड 3. तो एक कार्बन बाकी के आप देखेंगे, यानी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो बनता है वो स्ट्रक्चर्स के अंदर ईच डायमंड और सॉरी इन डायमंड ईच कार्बन एटम दैट बॉन्डेड विद द 4 अदर कार्बन, बाकी के 4 कार्बन के साथ वो जुड़ा हुआ रहता है, जो एक रिजिड 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है. अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन का जो एटम्स है उसके बीच का ये जो एंगुलर पोर्शंस होता है, ये जो एंगुलर पोर्शंस बनता है, ये एंगुलर पोर्शन जो होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है. तो कार्बन का ये जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो एंगल जो फॉर्मेशंस होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट्स का वो फॉर्मेशंस होता है. और मोस्टली ये जो स्ट्रेट फॉर्मेशन होता है वो 154 पार्ट्स मिलियन का होता है, दैट इज कॉल्ड पीएम. ओके, इतना फॉर्मेशंस का होता है. तो ईच एंड एवरी फॉर्मेशंस ऑफ द टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स इन अ डायमंड हैविंग अ एंगल 109 डिग्री 28 मिनट एंड हैविंग अ 154 पार्ट्स मिलियंस फॉर्मेशंस. तो ये उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है उसका. तो ये जो पूरा रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बन रहा है, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, अभी तो हमें सब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी समझना है. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है डायमंड की, तो देखिए डायमंड्स की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की डिस्कशन करें तो कार्बन एटम्स विच आर अरेंज इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इनटू अ डायमंड. डायमंड के अंदर कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में जुड़ा हुआ रहता है. एंड इट इज मोस्टली हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस के फॉर्म में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्टली हार्डेस्ट सब्सटेंस इनटू द नेचर राइट नाउ. कार्बन्स का एटम्स जो होते हैं, द कार्बन एटम्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. ओके, काफी क्लोज होते हैं क्योंकि इनके एक कार्बन बाकी के 4 कार्बन के साथ जुड़े हुए रहते हैं.
So carbon atoms are very closely packed in diamond, so hence it is a very high density, approximate 3.54 gram per centimeter cube. These are the generally density. So diamond that possesses the numerous of covalent compound of bonds into the structure of diamond, so it's why its melting point is very high, approximate 4200 Kelvin. So there are no any free electrons, because each and every carbon that join with another 4 carbons, so there is no any free electrons available into the diamond structure, so it is a non conductor of electricity. क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे तो इट कैन नॉट बी पास द इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. So in the diamond structure there is no any free electrons are there, so it cannot be passed the electricity, so it is a non-conductor or bad conductor. Diamonds are transparent mediums or having their very high reactivity index like 2.5, इसके वजह से वो ट्रांसपेरेंट होते हैं. And diamonds then can be synthesized by the pure carbon to applying the very high temperature and pressure, and these synthesized diamonds are small but are indistinguishable for the natural diamonds. वो उसके हिसाब से नेचुरल डायमंड से थोड़े से अलग होते हैं. सो दिस आर द जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड. ये डायमंड का फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऐसे लिख सकते हैं. देखो केमिकल प्रॉपर्टी तो सबकी सेम ही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि केवल उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ही डिफर होती है. सेकंड जो दिख रहा है वो है फिगर आपका ग्रेफाइट के बारे में. सेकंड फिगर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेफाइट, द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट. इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अभी. लेट बी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट. तो ग्रेफाइट के अंदर जैसे फिगर दिख रहा है, इन ग्रेफाइट each carbon atom is bonded with the 3 other carbon atoms in a same plane giving a hexagonal array. Hexagonal array के फॉर्मेशन में लाइक दिस इज द हेक्सागोनल array. ठीक है, इस फॉर्मेशन के अंदर वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है. So one of this bond is generally having it's a double bond and thus the valency of carbon is satisfied. मोस्टली क्या होता है कि इसके जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उसमें यहाँ पे एक आध ऐसा बॉन्ड जो होता है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है. सी दैट हेक्सागोनल एरे के अंदर मोस्टली जो बॉन्ड्स हैं वो आपके यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं. तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ने से वो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का एक एटम बाकी के 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है. सो ये हेक्सागोनल जो होते हैं लेयर बाय लेयर के फॉर्मेशन में फिगर में जैसे दिया है वैसे जुड़े हुए रहते हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट दैट इज अ हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स, ऐसे आप उसको कह सकते हैं. अभी ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो ग्रेफाइट का यहाँ पे दिया है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी. अभी ग्रेफाइट जो है एकदम स्मूथ और स्लिपरी सब्सटेंसेस है. इट इज अ वेरी स्मूथ एंड स्लिपरी सब्सटेंसेस. इसकी डेंसिटी जो है ग्रेफाइट की ये काफी लो है कंपैरिजन टू डायमंड, क्योंकि डायमंड के अंदर एक कार्बन बाकी के 4 कार्बन के साथ काफी क्लोजली जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे एक कार्बन बाकी के 3 कार्बन के साथ एज हेक्सागोनल एरे लेयर के फॉर्म में जुड़ा है, तो उतने क्लोज होने नहीं है, इसलिए इसकी जो डेंसिटी है स्ट्रॉन्गनेस वो थोड़ी सी कम है कंपैरिजन टू द डायमंड. अब ग्रेफाइट के अंदर जो 3 वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप जो यूज कर रहे हैं, जो बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स का आप यूज कर रहे हैं, इसके वजह से एक वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली रहता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आप शेयर कर रहे हैं, तो एक वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या होता है, फ्री होता है. तो फ्री होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर सकता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा. सो दैट्स व्हाई ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. ओके, तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी. तीसरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ C60 बल्क मिंस्टर फुलरेंस. ये फुलरेंस के बारे में देखो. फुलरेंस दैट फॉर्म्स अनदर क्लास ऑफ कार्बन एल्ट्रोप्स. कार्बन का एक और एल्ट्रोप्स है जिसको फुलरेन कहते हैं. इट इज द बेसिक फॉर्मेशंस ऑफ कार्बन फुलरेंस. सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर जो कार्बन का है वो फुलरेन में ही कंसीडर किया गया था. द फर्स्ट वन ऑफ दैट कैन बी आइडेंटिफाई द कार्बन स्ट्रक्चर्स ऑफ फुलरेन इज C60, जिसमें विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज इन अ शेप ऑफ फुटबॉल, जिसमें 60 कार्बन के एटम्स का यूज किया गया था. अभी उसके अलावा भी बाकी के जैसे अभी आप इस तरह के फुलरेंस का अगर आपको स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट करना है, जैसे कैंडल्स है, कैंडल्स को बर्न्स करते हैं उसके शूट्स के अंदर इस तरह के फॉर्मेशंस हो सकते हैं कार्बन के एल्ट्रोप्स का एज अ पार्ट ऑफ फुलरेंस. तो कार्बन के उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर है. सबसे लोएस्ट C20 और सबसे हाईएस्ट C290 है. इस हिसाब से कार्बन का जो फुलरेंस है अलग अलग स्ट्रक्चर में पाया जाता है. तो सिंस इट्स लुक लाइक एज द स्ट्रक्चर ऑफ द गॉडेजिक्स डॉम्स डिजाइन, जो गॉडेजिक्स डॉम्स डिजाइन होते हैं मंदिर के ऊपर जो डॉम्स होते हैं, तो इसको सबसे पहले जो यूएस के जो आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बल्क मिंस्टर फुलर, उन्होंने इसको सबसे पहले डिजाइन किया था लाइक अ शेप ऑफ फुटबॉल, इसीलिए उसका नाम जो है
वो फुल रिंग्स रखा गया उनके नेम पे। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ C60 बल्क मिनिस्टर फुल रिंग्स। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में कंसिडर किया जाता है। चलिए एक टॉपिक और डिस्कशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन? तो जो कार्बन का जो एटम्स होता है दैट फॉर्म्स अ कोवलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग द ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स एंड टू फॉर्म द न्यूमरस ऑफ कंपाउंड। कार्बन का जो एटम्स होता है वो क्या करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है जिसके अंदर वो बॉन्ड को क्रिएट करता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर एटम्स एंड फॉर्म द न्यूमरस ऑफ कंपाउंड। अलग अलग कंपाउंड को क्रिएट करता है बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ये जो नंबर ऑफ कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं दैट इज नोन बाय द केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड अबाउट द 3 मिलियंस। 3 मिलियंस के आसपास अभी कार्बन के इस तरह के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। सो कार्बन हैज अ स्पेसिफिक एबिलिटी, कार्बन की एक स्पेसिफिक एबिलिटी है जो क्रिएट करता है एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड को। 2 फैक्टर्स विच इज नोटिफाइड, जिसमें पहला प्रॉपर्टी है जिसको हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज द कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म अ बॉन्ड विद द अदर एटम्स ऑफ कार्बन। बॉन्ड क्रिएट करता है एक से दूसरे एटम्स का ऑफ कार्बन के बीच में, which giving a rise of large number of molecules, large number of molecules वहाँ पे created होता है। इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। This property is generally known as a catenation property। तो कार्बन कंपाउंड कंसिस्ट अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन और मे बी ब्रांच चेन्स ऑफ कार्बन और मे बी इन अ रिंग फॉर्म और मे बी इन अ साइक्लिक फॉर्म। ठीक है, मे बी इन अ साइक्लिक फॉर्म, ऐसे फॉर्मेशंस में वो क्रिएट कर सकते हैं फॉर्मेशंस के हिसाब से। तो अगर हम देखें उसके बारे में, अगर हम डिस्कशंस करते हैं कार्बनिक फॉर्मेशंस के हिसाब से, तो स्ट्रेट चेन के फॉर्मेशंस में अगर कार्बन है तो जैसे मैं आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, अगर स्ट्रेट फॉर्म में लाइक C डैश C डैश C डैश C, ऐसे हम क्रिएट कर सकते हैं लाइक अ स्ट्रेट चेन। ओके, इट इज लाइक अ स्ट्रेट चेन, कार्बन का स्ट्रेट चेन है। अब इस स्ट्रेट चेन को मैं ब्रांच चेन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इफ आई वांट टू कन्वर्ट लाइक अ ब्रांच चेन, C डैश C डैश C डैश C फॉर्मेशंस लाइक दिस, ऐसे भी आप इसको ब्रांच में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। और मान लीजिए ब्रांच चेन को अगर मुझे 6 कार्बन रिंग्स के अंदर कन्वर्ट करना है लाइक ब्रांचेस ऑफ फॉर्मेशंस के हिसाब से, तो ऐसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। C डैश C डैश C, ऐसे आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ऐसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं C डैश C के हिसाब से। ठीक है, तो कार्बन का जो सिंगल चेन जो फॉर्मेशन होता है उसका ब्रांच चेन में 5 कार्बन रिंग्स में, 3 कार्बन रिंग्स में, 4 कार्बन रिंग्स में, 6 कार्बन रिंग्स में, ऐसे सिंगल चेन को आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कार्बन का एटम मे बी लिंक विद अदर एटम। कार्बन का जो एटम्स होता है दूसरे एटम के साथ लिंक करता है बाय द यूजिंग ऑफ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। कंपाउंड ऑफ कार्बन जो होते हैं जिसमें विच दे आर लिंक विद द सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड्स ऑफ बिटवीन द अदर कंपाउंड। तो अगर वो कार्बन के जो कंपाउंड्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है विद हैविंग अ सिंगल बॉन्ड, तो उसको हम सैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और वही अगर कार्बन के कंपाउंड्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं तो आप उसको कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो कार्बन एंड कार्बन और कार्बन का बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, हेंस इट इज अ वेरी स्टेबल। सिंस कार्बन हैव अ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन का वैलेंसी क्या है, 4 है, तो इट इज कैपेबल टू बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और मे बी द सम अदर मोनोकोवलेंट ऑफ एलिमेंट। 4 कार्बन के एटम के साथ या दूसरे मोनोकोवलेंट एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। जैसे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जैसे आप देखिए कि जो फॉर्म करता है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ, और भी ऐसे एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड होते हैं जिसके साथ वो ज्वाइन करके अलग अलग तरीके के प्रॉपर्टीज डिफाइन करता है जो उस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द कार्बन विद द मोस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग विच मेक्स कंपाउंड एक्सट्रीमली वेरी स्टेबल, क्योंकि इस तरह का कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होता है। सो कार्बन दैट इज बीइंग वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल में काफी छोटा है साइज में, तो इट एनेबल्स दैट न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द सेड पेयर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वेरी स्ट्रांगली, सो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द कार्बन। वो कार्बन की वजह से इस तरह से ज्वाइन हो सकता है। तो जैसे कार्बन का जो एटम्स है, कार्बन के मोस्ट ऑफ हम एटम्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो कार्बन एटम पोजेसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ द टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन।
कार्बन के अंदर दो स्पेसिफिक फीचर्स है, एक टेट्रावैलेंसी का है और एक कैटेनेशंस का है, एंड ड्यू टू दिस बोथ प्रॉपर्टी इट फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, वो अलग अलग कंपाउंड को क्रिएट कर सकता है, कैटेनेशंस और टेट्रा। सो अमंग ऑफ दिस many of compound have the same non-carbon atoms or maybe the group of atom which is defined or maybe attached with some other different carbonic chains, एक कार्बन चेन दूसरे कार्बन चेन के साथ जुड़ सकता है, सो नॉन कार्बन एटम के साथ भी वो क्रिएट हो सकता है। सो दिस कंपाउंड्स आर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज, जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर से जो पेट्रोकेमिकल सब्सटेंसेस निकलते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ द कार्बनिक कंपाउंड। तो कार्बनिक कंपाउंड जो हमें उसमें से मिलते हैं उसको हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स कंपाउंड के साथ क्रिएट करके नए नए फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इट वाज बिलीव दैट कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड ओनली बी फॉर्म विद द लिविंग सिस्टम। इससे एक चीज पता चलता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो केवल लिविंग सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज इट वाज पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स was necessary for the synthesis. So German scientist, जिनका German scientist whose name was the Friedrich Haller disapproves this in 1826. 1826 के अंदर उसको उन्होंने disapprove किया था, that should be disapproved. तो जनरली वो उन्होंने अलग अलग तरीके के जो फॉर्मेशंस क्रिएट किए थे, he prepared a organic compound like यूरिया, उन्होंने यूरिया जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएट किया था by heating the inorganic compound of ammonium cyanide. Ammonium cyanide जो है, उस ammonium cyanide it is the inorganic compound, उस inorganic compound को उन्होंने organic compound में convert किया था। तो उन्होंने organic compound को prepare किया था while having a urea having a formation। चलिए उसका मैं आपको एक chemical formula लिख के देखता हूँ। इसे ammonium cyanide है, ammonium cyanide को हम लिखेंगे NH4ONC, that is called ammonium cyanide। इस ammonium cyanide को उन्होंने हीट देके यानी कि डेल्टा, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया था किसमें, यूरिया के अंदर NH2-C-NH2, राइट, NH2 और C को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ उन्होंने जोड़ दिया था। तो ये जो आपका एमोनियम साइनाइड है, इस एमोनियम साइनाइड को उन्होंने यूरिया के अंदर कन्वर्टेड किया था, दैट इज कॉल्ड यूरिया, that is called urea, right? तो ये यूरिया उन्होंने बनाया था by using the formation of inorganic compounds का यूज करके ऑर्गेनिक कंपाउंड में। क्लियर? तो आई होप कि आज का जो सेशन अभी तक आपने पढ़ा है कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई रिक्वेस्टेड टू यू कीप अपडेटिंग योर नॉलेज बाय यूजिंग डिफरेंट डिजिटल मीडियम्स ऑफ लर्निंग, कीप अपडेटिंग योर नॉलेज बाय रीडिंग दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट ऑफ बुक्स, राइट द आंसर्स व्हिच इज गिवन इनटू योर एक्सरसाइज। कल जब हम डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे आगे, तब हम सबसे इंपॉर्टेंट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड्स पर डिस्कशन करेंगे, उसके रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और भी बाकी के जो फॉर्मेशंस है कार्बनिक कंपाउंड का डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया है। तो स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, कीप अपडेटिंग योर नॉलेज एंड अपडेट योरसेल्फ। वंस अगेन स्टे होम, स्टे सेफ। कल मिलेंगे विद द सेम टॉपिक। टेक केयर एंड बाय।